everyone, welcome to the session. In today's session we are going to talk about civil interregnum period. This particular period refers to the age between the Caroline period and the age between the Restoration period. जब चार्ल्स द फर्स्ट हमारे किंग थे और चार्ल्स द सेकेंड जो उनके सन थे, ओके, जब उनका रेस्टोरेशन हुआ था, इनके बीच का जो 20 इयर्स का पीरियड था, जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे, ओके, इफ वी सी कैरोलिन एज, इससे पहले हमने कैरोलिन एज को पढ़ा था, and then after Caroline age, okay, we are going to see the restoration. Okay, the Caroline age was from 1625 to 1649. Okay, then we have the Restoration age. The period is from 1660 to 1689. Here we see the rule of Charles the First. Okay, when monarchy was there, this was the Caroline period. Yes. Here we see the restoration of Charles the Second. Okay. Here we see the restoration of Charles the Second. The restoration of basically monarchy. But from 1649 to 1660 we have in between 20 years, right? 20 years. Now what happened during these 20 years? Okay, so here we see that this is the period of civil interregnum. इनसे पहले हम देखते हैं कि इंग्लैंड में मोनार्की स्टैब्लिश हुई थी. Okay, it was monarchy was there, और चार्ल्स द फर्स्ट जाने जाते हैं for 11 years of tyranny because he did not let the parliamentarians meet for 11 long years. तो मोनार्की हम देखते हैं 1649 में on 30th January चार्ल्स द फर्स्ट was executed. Okay, executed मतलब he was killed by Oliver Cromwell. Okay, Oliver Cromwell was the leader of the parliamentarians, और parliamentarians के बीच में इनकी लड़ाई हुई थी, और इसीलिए सिविल वॉर बोलते हैं कि सिविल वॉर जो है एक ही कंट्री में जब दो पार्टीज एक दूसरे के अगेंस्ट होती है तो उसे हम सिविल वॉर कहते हैं. तो यहाँ पर जो है हमारा सिविल इंटररेग्नम पीरियड अगर हम यहाँ पर देखें, सो दिस इज बेसिकली नोन टू बी द सिविल इंटररेग्नम regnum period, okay, wherein we see the rule of Oliver Cromwell. With Oliver Cromwell, here we see that republican government was established, right? Here we see that republican government was established. Republican government refers to the government which is by the people. Okay, so we see this whole scenario, and Charles the One, here we see that it was basically he was executed by Oliver only, Oliver Cromwell, right? Okay, he executed Charles the First here, right? Then we see later on Charles II was basically the son of Charles the First. Okay, he was the son of Charles the First. Wherein the restoration, with restoration we see the restoration of the monarchy. Yes, I hope this is sorted so far.
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब सिविल इंटररेग्नम पीरियड आया तो क्या इसका बैकग्राउंड रहा वो हमने देखा, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ओके, क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, तो इनको अब हम डिस्कस करेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो बेसिकली जो हमारे ओलिवर क्रॉमवेल थे ये प्योरिटन थे। प्योरिटन बेसिकली हम देखते हैं प्रोटेस्टेंटिज्म का एक्सट्रीम फॉर्म होता है, जहां पर हम देखते हैं इवन ऑन संडेज दे आर नॉट इंजॉइंग और गोइंग फॉर पार्टीज और हैविंग फन, दे आर ऑलमोस्ट एवरी टाइम इन द प्रेयर ऑफ गॉड एंड दे डू नॉट बिलीव इन द फ्लेम्बॉयंट और द वाइब्रेंट लाइफ। They believe that life should be very simple, devoted to God. So that's how here we see Oliver Cromwell. Yes. And in 1853, okay, in 1853 he also became the Lord Protector. Okay, इनको एक टाइटल दिया गया था ऑफ लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड. वाई? बिकॉज ही डिफीटेड and he won the battles with Scotland, Ireland, so he acquired that entire area and he became the Lord Protector of England during that time. Okay. आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दो हमारे उस टाइम ग्रुप्स थे, क्योंकि सिविल वॉर जो है वो एक ही कंट्री में जब दो पार्टीज डिवाइड हो जाती हैं और एक ही कंट्री में जो वॉर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं उसको हम कहते हैं सिविल वॉर. और ये भी हमारा 2 phases में हुआ था. ओके, 2 phases में हमारा सिविल वॉर हुआ था. द फर्स्ट फेज वॉज फ्रॉम 1642 to 1646. Then the second period was from 1648 to 1649. Yes, so these were the 2 phases. First phase, and this is the second phase. Yes, here we see the rule of royalists. Okay, and here we see the rule of parliamentarians. Okay, they were both in the opposition. रॉयलिस्ट जो थे कैवलियर पोइट्स के बारे में मैंने आपको बताया भी, जो मोनार्की को सपोर्ट करते थे, किंग को सपोर्ट करते थे. ओके, सपोर्टेड किंग चार्ल्स द फर्स्ट एंड द आइडिया ऑफ मोनार्की. जो पार्लियामेंट्स थे, पार्लियामेंटेरियंस थे, जो राउंड हेड्स जिनको हम कहते हैं, वो ओलिवर क्रॉमवेल को सपोर्ट करते थे. एंड देन वी सी दैट बेसिकली ओलिवर क्रॉमवेल वन. ओके, मूविंग फॉरवर्ड अगर हम यहाँ पर आगे देखें, व्हाई ही वाज नोन टू बी द लॉर्ड प्रोटेक्टरेट. ओके, आयरलैंड के साथ ओके जो भी कैंपेन्स थे, क्रॉमवेल क्रश्ड द आयरिश कैथोलिक रिबेलियन एंड देन वी सी दैट ही किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, डिफीटेड स्कॉटिश रॉयलिस्ट्स ओके हु सपोर्टेड चार्ल्स द सेकंड. जो भी उनको सपोर्ट करते थे, उनके सन को, चार्ल्स द फर्स्ट को, ही यूज्ड टू एग्जीक्यूट ऑल ऑफ देम. ओके, 1651 में हम देखते हैं क्रॉमवेल हैड फुल कंट्रोल ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड. तो यहां पर ओके 1651 में इनके पास फुल कंट्रोल आ गया था ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड ओके एज वेल एज आयरलैंड. ओके, तो यहां पर हम देखते हैं दैट ही बिकेम द लॉर्ड प्रोटेक्टर इन 1653. ओके, जैसा कि हमने यहां पर देखा ओके कि ये जो हमारे ओलिवर क्रॉमवेल है ओके ही बिकेम, यहां पर हम देखेंगे दैट इन 1653 Oliver became the Lord Protector. Yes. So we see that the interregnum period 1649 to 1660 टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से काफी बार PYQ आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है. सिविल वॉर कब हुआ था, ये क्वेश्चन हमारा बन सकता है. Okay, refers to the period between the execution of Charles the First and Charles the II. हमने देखा ये पूरा टाइमलाइन यहाँ पर. ओके, इट वाज द टाइम ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल, अनहीवल. ओके, और हम देखते हैं काफी सारे जो थे, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें यहाँ पे, ठीक है, वी सॉ कि जो ओलिवर क्रॉमवेल है उनको लॉर्ड प्रोटेक्टरेट बना दिया गया था. पर हम यहाँ पर देखते हैं कि 1652 में बेसिकली 1642 में ओके जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे, 1642 में थिएटर्स वर बैंड. ओके,
थिएटर्स को बैन कर दिया गया था, तो कोई ड्रामा या थिएट्रिकल परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी. सो हियर वी सी दैट थिएटर्स बैंड. 1643 में हम क्या देखते हैं यहाँ पे, लाइसेंसिंग एक्ट की. यस, सो 1642 में थिएटर्स और बैंड, 1643 में लाइसेंसिंग एक्ट की. लाइसेंसिंग एक्ट का मतलब है कि कोई भी अगर बुक्स पब्लिश हो रही है, ओके, कोई भी अगर रिटन डॉक्यूमेंट पब्लिश हो रहा है, तो उसमें क्या होगा कि पहले पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होगा, तभी वो पब्लिश हो सकता है. इस पे 1644 में जॉन मिल्टन ने एक इंपॉर्टेंट वर्क भी लिखा था, एरोपेजेटिका, जिसमें वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते थे. ओके, सो दीज वर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. If we look at the protectorate period, okay, 1653 से 58 तक, okay, हम ऑलिवर क्रॉम्वेल को बोलते थे. This term was basically used by ऑलिवर क्रॉम्वेल. Yes, ऑलिवर क्रॉम्वेल के लिए ये टर्म यूज की गई थी. True. The protectorate, here we see 1653 to 1658, Cromwell's rule as a lord protector. ठीक है, हम उनका रूल देखते हैं as a lord protector. यहाँ पे जहां पर हम देखते हैं he was dissatisfied with the Rum Parliament, Cromwell dismissed it. उन्होंने पार्लियामेंट को डिसमिस करके he established his own military dictatorship, जहां पर वो मिलिट्री में उन्हीं लोगों को रखते थे जो डिजर्व करते हैं. वहां पर भी अब कोई ऐसा नहीं था कि if someone is related to king या फिर जो ऑलरेडी कोर्ट्स में है. सो जो था टैलेंट के बेसिस पर ये मिलिट्री में जो पोजीशन है उन पे लोगों को हायर करते थे. ही बिकेम लॉर्ड प्रोटेक्टर इन 1653. दिस इज एन इंपॉर्टेंट ईयर. यहाँ पर ईयर्स का रोल काफी ज्यादा है, थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड चीजें हमें याद करनी पड़ेंगी. ओके, सो यस, रूलिंग विद एब्सोल्यूट पावर बट विदाउट द टाइटल ऑफ द किंग. ओके, दैट ही वाज रूलिंग विद एब्सोल्यूट पावर बट विदाउट द टाइटल ऑफ द किंग. अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें इस एज के, ओके, इफ वी टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स हियर, तो यहाँ पर हम देखेंगे की फीचर्स ऑफ द प्रोटेक्टरेट. स्ट्रिक्ट प्योरिटन रूल था इस टाइम पे. यस, बैंड थिएटर, ठीक है, थिएटर को बैन कर दिया था. गैम्बलिंग और एंड इवन क्रिसमस सेलिब्रेशंस, ऑल दीज थिंग्स वर बैंड. लोग बहुत ही सिंपल लाइफ जी रहे थे. इसीलिए हम देखेंगे कि अभी जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो रेस्टोरेशन पे मैं बनाऊंगी. रेस्टोरेशन आते ही, जैसे ही थिएटर वापस आए, 1660 में रिवाइवल ऑफ थिएटर्स हुआ था, रेस्टोरेशन ऑफ थिएटर्स हुआ था. सो पीपल वेंट मैड. ओके, पीपल वेंट मैड एंड दे वर सेलिब्रेटिंग, दे वर एंजॉइंग. और उसी तरह हम देखते हैं कि कुछ लाइसेंशियस थीम्स भी आ गई थी थिएटर्स में, बिकॉज इतने टाइम बाद थिएटर ओपन हुआ था. रिलीजियस टॉलरेंस अलाउड प्रोटेस्टेंट्स फ्रीडम बट परसिक्यूटेड कैथोलिक्स. ओके, कैथोलिक्स को बहुत ज्यादा इन्होंने जो था क्योंकि प्योरिटन्स फॉलो कर रहे थे. ओके, तो मास किलिंग भी इन्होंने की थी. परसिक्यूट मतलब किलिंग ऑफ कैथोलिक्स. इंग्लैंड बिकेम अ नेवल पावर, फाइटिंग स्पेन, नीदरलैंड्स. तो अलग अलग जगह हम देख रहे हैं इनका डोमिनेंस रहा था. टेंशंस विद पार्लियामेंट, क्रॉम्वेल डिसॉल्व पार्लियामेंट व्हेन इट डिसएग्रीड विद हिम. ओके, तो उन्होंने पार्लियामेंट को डिसॉल्व भी कर दिया जब वो डिसएग्री कर रहा था. When Cromwell died in 1658, his son Richard Cromwell came, but वो अनपॉपुलर थे, इसीलिए हम देखते हैं 1660 में फाइनली चार्ल्स द सेकंड केम. तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो है, यहाँ से हमारा रेस्टोरेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है. ऑल्सो स्टूडेंट्स, हमारी जो क्लासेज हैं, ओके, यूट्यूब की जो लाइव होती हैं सुबह मॉर्निंग में 8:30 AM. ओके, वी हैव आवर यूट्यूब लाइव. हमारी यूट्यूब लाइव क्लास होती है जहां पर हम ब्रिटिश लिटरेचर की जो सीरीज है उसको कंटिन्यू पढ़ रहे हैं. ओके, डेली आप लाइव में आओगे, सुबह 1 घंटा PYQs करोगे, MCQs करोगे, हम थ्योरी के साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं. सो इट इज क्वाइट हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स. सो यूट्यूब लाइव पर हमारा अभी ब्रिटिश लिटरेचर की सीरीज ही कंटिन्यू हो रही है. So do join the live class. Okay, do catch up the live class in the morning, wherein we are solving a lot of questions and a lot of students are already benefited by the series. ठीक है, वो आते हैं, question solve करते हैं, so they are getting ahead with the competition. So you can also join us at 8:35 in the morning, and with
If you want more videos like this, you can like, share and subscribe to Utkarsh UGC Net channel. Thank you so much everyone. Have a nice day ahead.